جس کا عنوان ہے عشق و محبت کی تباہکاریاں اور بین مذاہب شادیوں کی شرعی حیثیت، اس کے مقرر ہیں جناب سید عبدالستار صاحب رکن جماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے اس تقریر کا عنوان سنا، ٹاپک وہ ہے عشق و محبت کی تباہکاریاں اور بین مذاہب شادیوں کی شرعی حیثیت۔ انشاءاللہ اس عنوان کے تحت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری مدد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس عنوان کا تقاضا ہے کہ اس کے اصل مخاطب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اور دراصل اس تقریر کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرنا ہے کہ یہ عمر جو ان کی بیچلر لائف کی عمر ہوتی ہے، کس طرح احتیاط کے ساتھ گزارے تاکہ وہ نقصانات سے، خطرات سے بچ سکے۔ تو یہاں ان کے سامنے جو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے نوجوانوں کے سامنے، وہ عشق و محبت، اس کی تباہکاریوں سے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ اگر وسیع معنی میں لیا جائے تو عشق و محبت ناجائز نہیں ہے، یہ تو مطلوب ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اپنے جوڑے کے ساتھ، کپل کے ساتھ محبت، عشق اور محبت کی زندگی گزارنا یہ اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ جائز کب ہے اور ناجائز کب ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جب یہ عنوان رکھا گیا ہے کہ اس کی تباہکاریاں، مطلب یہ ناجائز عشق و محبت ہوا، یہ اس وقت جب کہ ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی ہو اور وہ اس میدان میں قدم رکھنا چاہے۔ تو عشق و محبت کا کنسپٹ، اس کا تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول رکھا ہے کہ ہر فرد کو جوڑے جوڑے کی حیثیت سے پیدا کیا، کہ انسان کے لیے بھی اس نے جوڑا پیدا کیا۔ ہر چیز کی پیدائش یہاں جوڑے جوڑے کی حیثیت سے ہے، تو انسان کے لیے بھی اس نے مرد اور عورت کا جوڑا رکھا ہے، اور ایک کی ضرورت اپنے پارٹنر کے پاس، اپنے جوڑے کے پاس اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی ایک طلب رکھی، اس کے اندر ایک خواہش رکھی، تڑپ رکھی، اس کو ایک محبت کی چاہت کہیں گے، خواہش کہیں گے۔ اس کی ضرورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس میں رکھی ہے، اس کے تعلق سے قرآن میں بتایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ اپنے جوڑے کے پاس انسان کے لیے، مرد کے لیے عورت کے تعلق سے محبت کا جذبہ رکھا، اور ان کے مل جل کر قریب آنے پر وہ محبت کے جذبے کی تسکین کا سامان رکھا، اور پھر مل جل کر زندگی گزارنے پر ان کے درمیان آپسی محبت، چاہت، ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات کو ابھارنے کا سامان رکھا ہے۔ تو یہ انسان کی ضرورت ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے اور ایک دوسرے کے کام آ سکے، ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ سکے، اور بہترین پارٹنر کا رول ادا کر سکے۔
लेकिन ये स्टेज कब है? वो शादी के बाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रखा है, इसका दरवाजा, इसका रास्ता जो रखा है निकाह के जरिए से रखा है। इसलिए हिदायत फरमाई कि सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रिश्ते जिनका एहतराम है, माँ बेटा, भाई बहन, बाप बेटी, ऐसे सब रिश्ते जो इंतहाई काबिल एहतराम रिश्ते होते हैं और बिल्कुल मुखलिसाना मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, इनमें शादी ब्याह नाजायज है। इन रिश्तों को छोड़कर, हुर्मत वाले रिश्तों को छोड़कर, रेस्पेक्टेड रिश्तों को छोड़कर जो दूसरे अफराद हैं उनसे शादी ब्याह कर सकते हैं। इसका रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बताया है। सूरह निसा की आयत नंबर 23 में ये रिश्ते जो जिनमें अर्थ निकाह नहीं हो सकता वो बयान करने के बाद 24वीं आयत में ऐसी औरत से भी जो किसी दूसरे के निकाह में हो आदमी निकाह नहीं कर सकता, ये वाज़ेह कर देने के बाद जो एक इंसानों को रास्ता दिखाते हैं कि इनको छोड़कर तुम अपने लिए अपने जोड़े का इंतखाब कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, मुंतखब कर सकते हो, इनके साथ निकाह के बंधन में बन सकते हो और अपनी जिंदगी मोहब्बत और रहमत के साथ गुजार सकते हो। ये इजाजत दी है, ये सही रास्ता बताया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि निकाह की उम्र को पहुंचने के बाद निकाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। इससे आदमी में शराफत आ जाती है, शराफत की हिफाजत होती है, नजरें नीची होती हैं और हकीकत में इंसान ख्यालात के मुंतशिर होने से, दूसरी तरफ डाइवर्ट होने से बच सकता है, महफूज रहता है। जैसा कोई महफूज किले में अपने आप को हिफाजत में ले ले तो औरतें महफूज होती हैं, मर्दों की जवानियां, उनके अखलाक महफूज होते हैं। इसलिए हिदायत फरमाई है कि निकाह को इख्तियार करें। लेकिन निकाह से पहले वाली उम्र इसको कैसे गुजारें? वाह, जाहिर है कि कोई बचपन में ही निकाह नहीं कर सकता, उसकी भी एक उम्र है, बुलूगत है। फिर उठते ही छूटते सब काम छोड़े शादी ब्याह के चक्कर में भी नहीं पड़ सकते कि इश्क आशिकी। आज जो है ऐसे मैगजीन्स जिन पर मुख्तलिफ तस्वीर, पिक्चर्स छपे हुए हो या वीडियोस में अगर खुलेआम लड़के लड़कियों का मिलना या मिलजुल कर वक्त गुजारना, तन्हाई में वक्त गुजारना और इश्क और मोहब्बत की बातें करना, ये सब देखते हुए नौजवानों पर ऐसे असरात होते हैं कि वक्त से पहले वो इस ताल्लुक से सोचने लगते हैं। जब उनकी तालीम का मरहला होता है तो ये सब छोड़कर निकाह तो नहीं इख्तियार कर सकते, निकाह तो नहीं कर सकते। हालांकि जैसा मौलाना ने अभी जैसा बताया कि इसकी कोई मुतय्यन उम्र ऐसी भी नहीं है। अगर कोई सख्त जरूरत महसूस करे तो बदअखलाकी में पढ़ने से बेहतर है कि निकाह के रास्ते को इख्तियार करे। बाज वालिदैन, माँ बाप औलाद के सामने प्रपोजल रखते हैं, हम तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, लड़कों के सामने भी लड़कियों के सामने भी, लेकिन वो अरे हम इतना पढ़ने तक, ये डिग्री लेने तक, मास्टर डिग्री करने तक हम नहीं करेंगे, हम खुद अपने पैरों पर अच्छी तरह ठहरने तक नहीं करेंगे। तो ऐसे ख्यालात में भी रहकर वालिदैन की तरफ से प्रपोजल्स आए, उनको रहनुमाई भी मिले, तैयार भी हो, तो भी अपने आप को रोक लेने की एक बाज हिम्मत कर लेते हैं। बाज लोग अखलाक पर कायम हो सकते हैं और अगर बेजा हिम्मत कर ले तो पैर डगमगा सकते हैं। तो इससे भी संभलना है। अगर ऐसा मौका आ जाए, कोई नौजवान अपनी सही उम्र को भी पहुंचे, एक स्टेज को पहुंचे, कुछ अपने टारगेट्स हासिल कर ले, तो अगर प्रपोजल हो वालिदैन की तरफ से तो उसको इख्तियार कर लेने में भी भलाई ही है, सेफ्टी है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि अब उसके ताल्लुक से गाइड करूं, क्योंकि पूरी गाइडेंस और तफसीली तकरीर मौलाना मोनिस किरमानी साहब की आपके सामने आई। अब जो है मेरा टॉपिक, खासकर नौजवानों को एडोलसेंस एज के बाद से शादी
के बंधन में बंधने तक जो उम्र गुजरती है उसकी कैसे हिफाजत करें, इस ताल्लुक से गौर करना है। अगर यहां हमारे कदम डगमगाएं, किसी नौजवान के कदम डगमगाएं, तो उसके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में सोचना है। तो दो तरह के नुकसान हैं। जैसा आप जानते हैं कि ये हमारी दुनियावी जिंदगी है, ये हमेशा हमेशा की जिंदगी नहीं है, बल्कि इसका एक लिमिटेशन है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, या अल्लाह ताला किसी को जल्द भी बुला लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जनरली 60-70 साल की उम्र में इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है। तो ये हमेशा रहना नहीं है। दुनिया की जिंदगी एक महदूद लिमिटेड पीरियड है। और इस्लाम ने जो कंसेप्ट दिया, तस्वुर दिया है कुरान ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी मौत के बाद आने वाली दूसरी जिंदगी है, जिसके बारे में कहा गया लाइफ आफ्टर डेथ, आखिरत की जिंदगी। ये जिंदगी हमेशा हमेशा की है। तो हमें यह सोचना है कि इसके नुकसान आखिरत में क्या हो सकते हैं। हमारे मरने के बाद की जिंदगी में जो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी, वहां क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर इस दुनिया के अंदर क्या नुकसान हो सकते हैं। हकीकत यह है कि यह ऐसा गलत रास्ता है जिसको इख्तियार कर लेंगे तो आखिरत में तो नुकसान, बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए हर एक की, लेकिन दुनिया में भी उसकी झलकियां हमें नजर आती, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यह गलत रास्ता है। आखिरत के नुकसानात में को जानने से पहले ये हम गौर करेंगे कि यहां किन किन उसूलों की खिलाफवर्जी होती है। शादी किए बगैर कोई नौजवान लड़का या लड़की किसी की इश्क में, मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उस इश्क को निभाने के लिए किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है और अल्लाह की बातों की क्या क्या खिलाफ वर्जी होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की क्या खिलाफ वर्जियां होती हैं। और अगर डीपली हम सोचें तो साइंटिफिकली क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या गलतियां हैं यहाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आगाह करते हुए इसके मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में खबरदार किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखें जिना करती हैं और उनकी जिना नजर है, और हाथ जिना करते हैं और उनकी जिना दस्त दराजी है, हाथ आगे बढ़ाना है, और पांव जिना करते हैं और उनकी जिना उस राह में चलना है, और जुबान की जिना गुफ्तगू है, और दिल की जिना तमन्ना और ख्वाहिश है, और आखिर में सिनफी आज़ा, सेक्सुअल पार्ट्स, या तो इन सब की तस्दीक कर देते हैं या तकजीब, ये सब को या तो फुलफिल कर देते हैं या फिर इससे बच जाते हैं। तो यहां जिना गलत रास्ता, जैसा इश्क और मोहब्बत का उन्वान आया आपके सामने, मैंने पहले ही बताया कि इश्क और मोहब्बत मतलूब है, लेकिन मियां बीवी के दरमियान अपने जोड़े के लिए मोहब्बत उसको रिजर्व रखना है शादी के बाद के लिए। अपने लाइफ पार्टनर जो जायज तरीके से और जो पसंदीदा है, जो सबके माँ बाप और बड़े मिलकर जो प्रपोज करते हैं, या जो समाज की तरफ से अच्छा रिश्ता है, उसको ओपनली जो इख्तियार किया जाए, और शादी के बंधन में खुलेआम अलल ऐलान करते हुए, सबको मालूम करते हुए एक दूसरे के बंधन में बनना है। उस वक्त से इश्क और मोहब्बत की सही जिंदगी शुरू होती है। उससे पहले बगैर शादी के बंधन में बंधे, निकाह के बंधन में बंधे इश्क और मोहब्बत, या किसी लड़की किसी लड़के से कुर्बत बढ़ाना, क्लोजनेस बढ़ाना, या लड़का सोचे कि किसी लड़की से क्लोजनेस बढ़ाना, तो ये नाजायज है, गलत है। इस इश्क और मोहब्बत को कहेंगे, शायरी की जुबान में इसको इश्क और मोहब्बत कहते हैं, लेकिन ये नाजायज है। एक शायर ने कहा है कि मोहब्बत को समझना है तो नादान खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। यह ऐसी ही बात है, वो दावत दे रहा है
समझा रहा है यार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, तुम करके देखो ये, इसमें क्या मजा आता है। या ऐसा ही एक शराबी कहे कि शराब का मजा लेना है तो शराब पी के देख, ठीक है, शराब पीएंगे, रोकेंगे, जूते खाएंगे, नुकसानात बर्दाश्त करेंगे। उसी तरह कोई आग में जाने के लिए कोई कहे अरे आग का मजा लेना है तो जरा आग में कूद के देखो, ठीक है, कूदने के बाद क्या होगा, जल जाएंगे। उसी तरह ये इश्क और मोहब्बत ऐसी चीज है, खुद करके देखने की कोशिश करेंगे तो इसके नुकसानात में पड़ जाएंगे। इससे संभलना है, इससे खबरदार होना है। ये एडोलसेंस एज जो है बड़ी चैलेंजिंग एज है। एडोलसेंस के बाद की जो शुरू इब्तदाई नौजवानी या शऊर शुरू होता है इंसान में, तो उस वक्त की जो उम्र है इंतहाई क्रिटिकल, एक इंतहाई खतरनाक और नाजुक कह सकते हैं, इसको संभालना बड़ी ही दानिशमंदी की बात है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों को खुशखबरी दी है जन्नत की जो अपनी जवानी को संभाल कर रखे, जवानी की हिफाजत करें, अपने अखलाक की हिफाजत करें। उनकी खुशखबरी है, बड़े खुशनसीब है वो नौजवान। आपके लिए इतना गोल्डन चांस है, इतना सुनहरी मौका है आप सब नौजवानों के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नेकी कमा सकते हैं, बड़े से बड़ा ऊंचा स्टेटस पा सकते हैं, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। बहुत बड़ा कीमती दौर है आपकी उम्र का, ये नौजवानी का जमाना, इसको समझना है। कुरान मजीद में कहा गया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन व कुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना। सूरह नूर आयत नंबर 30 और 31। इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन इस तरह है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को गैर औरतों की देखने से महफूज रखें, बचा कर रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपने शर्म के हिस्सों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है, ये पाक रहने का तरीका है। जो कुछ वो करते हैं उससे अल्लाह बाखबर है, अगर वो छुप कर भी कुछ करेंगे तो वो अल्लाह देख रहा है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को गैर मर्दों की दीद से बाज रखें, अपनी नजरों को गैर मर्दों को देखने से बचा के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपने शर्म के हिस्सों की हिफाजत करें। तो यहां इजाजत नहीं है किसी को, किसी नौजवान आदमी, बालिग इंसान आदमी को या बालिग औरत को, आदमी को, नौजवान को इजाजत नहीं है कि किसी लड़की को घूर कर देखे। देखने में भी फर्क होता है। एक है हम रास्ता चलते हुए सरसरी हर चीज हमारे सामने होती, सामने से कोई कार आ रही है, बाजू से बाइक जा रही है, या कोई जानवर आ रहा है, हम रास्ते से गुजरते हैं, मोटे अंदाज में देखते हैं, एक सरसरी नजर के महसूस करते हैं यहां से कार आ रही, लेकिन उतना गौर नहीं इस कार के अंदर क्या क्या पीसेस है, इस पे क्या लिखा हुआ है, उसमें उसका कैसा डिजाइन है, क्यों सामने एक है, क्या नहीं, उतना तफसील नहीं देखते। अगर देखते बैठेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम सरसरी नजर देख, कार आ रही है, हम जरा बाजू से गुजरते हैं। उसी तरह लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, एक झलक पड़ गई, लेकिन तवज्जो ज्यादा देना नहीं है, नजर हटा के बचा के आगे निकलना है। लड़कियों को भी ऐसा करना है। लड़के आ रहे हैं, वो कैसा लड़का है, उसका हाइट कितना है, मोटा है या दुबला है, या काला है या गोरा है, या कैसे कपड़े पहना है, ये सब देखते बैठना नहीं है। बोला ठीक है, कोई लड़का आ रहा है, गुजर गए, तो ये एक सरसरी नजर है, इसकी इजाजत है, ये तो देखना ही है, जरूरी है, लेकिन गौर से देखना, दूसरी नजर डालना, अरे कैसे हैं क्या नहीं, तो ये है वो नजर जिसकी हिफाजत करना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आदमी ज़ादे, तेरी पहली नजर तो माफ है, मगर खबरदार दूसरी नजर ना डालना। पहली नजर जो पड़ती है सरसरी नजर, वो माफ है, लेकिन उस पर दूसरी नजर यानी जरा गौर से देखना, घूर के देखना, ये सब जो है गुनाह की बातें हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर ना डालो, पहली नजर तो माफ है मगर दूसरी नजर नहीं। फिर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से पूछा कि अचानक नजर पड़ जाए तो क्या करूं?
فرمایا فوراً نظر پھیر لو. اچانک نظر پڑ گئی, نظر پھیر لی, بس ختم. اتنا ہی علاج ہے. آپ غور کیجئے, اگر ہر ایک کو دیکھتے بیٹھیں تو کیا مائنڈ پہ افیکٹ ہوگا. سائنٹیفکلی بھی اگر آپ غور کریں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا. پڑھنے لکھنے والے بچے جو ہے اگر ایسے نظر ڈالیں گے تو وہ پڑھ نہیں سکتے. تو یہاں نظر کی حفاظت کی ہدایت کی گئی ہے. اگر نظر کی حفاظت نہ کریں تو یہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. پھر دوسرا ہے جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اپنی نمائش کا, دوسرے اپوزٹ سیکس کے سامنے اپنی نمائش کرنا, دکھاوا کرنا. تو نوجوان تھوڑا اکڑ کر چلنے کی کوشش کریں گے یا لڑکیاں خوب بناؤ سنگار کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس سے بھی روکا گیا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى سورہ احزاب آیت نمبر 33. اس کا ترجمہ ہے اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بناؤ سنگار کی نمائش کرتی پھرتی تھی, وہ اب نہ کرو. دکھانے کے لیے زیادہ بناؤ سنگار کرنا. بناؤ سنگار ضروری ہے, وہ کب ہے؟ لڑکی عورت شوہر کے سامنے جتنا چاہے بن سنور سکتی ہے تاکہ اس کے اندر اور زیادہ اٹریکشن پیدا ہو, اور آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کر سکتا ہے, اپنے آپ کو خوب بہادر ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے بیوی کے سامنے. تو دوسروں کے سامنے عام دنیا میں جیسا سادہ سیدھا رہنا ہے ویسا رہنا ہے. پھر بناؤ سنگار کے بعد جو آتا ہے, اگر بیجا بناؤ سنگار کرے, دکھاوے کا کرے, یہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتا ہے. بس دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, دوسروں کو ابھارنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, یا سادگی سے ڈریسنگ کیے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہر ایک کا دل بہتر جانتا ہے کہ ہم کس جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں. اپنے اپنے دلوں کا نیتوں کا جائزہ لیں. اگر نیت خراب ہے تو یہ بھی گناہ کی بات ہے. پھر تیسری بات, ایکسپوجر کے بعد ایک دوسرے کے سامنے بن ٹھن کے آنے کے بعد, اور تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے عشق و محبت میں آدمی اگر اختیار کرنا چاہے وہ ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کرنا. کوئی لڑکے سے بات کر رہی, بہت ہی نرم انداز میں میٹھی اور لگاوٹ کے ساتھ بات کرنا, اور آدمی بات کر رہا ہے وہ بھی بہت ہی بہلا پھسلانے کی بات کرنا. تو اس سے بھی روکا گیا ہے. کہا گیا إِنِ اتَّخَذْتُمْ فَلَا تَخْزَانَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا سورہ احزاب آیت نمبر 32. اس کا ٹرانسلیشن ہے, اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ جس شخص کے دل میں بدنیتی کی بیماری ہو وہ تم سے کچھ امیدیں لگا بیٹھے. بات کرو تو سیدھے سادے طریقے سے کرو, جس طرح انسان سے بات کرتا ہے. بات کرنا ہے ایک جو نظر کے بعد پھر اظہار ظاہر کرنا اپنے آپ کو. تیسرا ہے بات چیت کے ذریعے سے اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اس میں بھی ہدایت ہے کہ آپ سادے انداز میں جو عام انسانوں سے بات کرتے ہیں اس طرح بات کیجیے. زیادہ ایک انداز اپنے اختیار کر کے, سب جانتے ہیں, نوجوان لڑکے بھی جانتے ہیں, نوجوان لڑکیاں بھی جانتے ہیں یہ بولیاں کیسی ہوتی ہیں, تو اس طرح کے انداز کو نہ اختیار کریں. یہ بھی گناہ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے دلوں کا حال. پھر آخری میں اور ایک مرحلہ ہے, وہ ایک دوسرے کے جسم کو ٹچ کرنا, مس کرنا, تنہائی میں وقت گزرنا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کا ہاتھ چھوئے گا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو, یعنی وہ اس کی بیوی نہ ہو, یا اگر ہاتھ چھو رہے ادب سے تو ماں وغیرہ نہ ہو, اس کی ہتھیلی پر قیامت کے روز انگارہ رکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی عورت کا ہاتھ چھوئے گا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو, اس کی ہتھیلی پر قیامت کے روز انگارہ رکھا جائے گا, آگ رکھی جائے گی ہاتھ پر اس کے. اس سے بھی ڈرنا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. دیکھیے اگر آپ غور کر کے دیکھیے اب تک کی زندگی کیسے گزر گئی. اگر ہم کتنے بھی خوشیوں کے لمحات گزارے ہوں گے وہ چلے گئے, اب باقی نہیں. اسی طرح یہ زندگی بھی گزر جانے والی ہے, باقی نہیں رہے گی.
बाकी रहेगी वो आखिरत की जिंदगी, जब अगर हाथ में आग दी जाएगी तो क्या होगा। ये तबाही है। और तन्हाइयों में वक्त गुजारना, ये भी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि आपने कहा अगर कोई मर्द किसी खातून औरत के साथ तन्हाई में अगर वक्त गुजारे अकेले में, और बाद में वो अलग होकर ये ऐलान करे मैं इस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो झूठ कहता है। चोर वही है कि हम तन्हाई में वक्त गुजारने का मौका ढूंढ रहे हैं तो दिल में खराबी है, और तन्हाई में वक्त गुजार रहे हैं तो दिल में खराबी है। तो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जो एहसासात को अच्छी तरह जान सकते हैं, इंसान के जज्बात क्या हो सकते, वो कह रहे जब ये कह रहा मैं कोई ताल्लुक नहीं भाई मैं चुप ऐसी बात किया, तो ये झूठी बात है, तो इससे भी खबरदार होना है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से सिर्फ ज़बानी इकरार लेकर बैत लिया करते थे। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे नेक कोई हो सकता है? कोई नहीं। सारी कायनात में सबसे आला व अशरफुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, सारे नबियों के सरदार, तो आपका तरीका कैसा था? मैं इतना नेक हूं और मासूम हूं, मैं हाथ लगाया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं आप बताए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि आपने कभी औरतों से हाथ मिलाकर हाथ पर हाथ देकर बैत नहीं ली, बल्कि जुबान के जरिए से ही उनसे बैत लिया। उनका हाथ अपने हाथ में ना लेते थे। आपने कभी किसी ऐसी औरत के हाथ को मस नहीं किया, यानी टच नहीं किया जो आपके निकाब में ना हो। सिर्फ अपनी बीवियों के हाथों को टच किया आपने, दूसरी औरतों के हाथों को टच नहीं किया। तो ये बातें आप गौर कर रहे होंगे कि इंसान को किस तरह बाहया बनाते हैं, हयादार बनाते हैं। उसके अंदर हया, सेल्फ रेस्पेक्ट की जज्बात को उभारते हैं। उसके अंदर एक इत्मीनान की कैफियत पैदा होती है कि मैं भी कुछ पाकीज़ा तरीके से जिंदगी बसर करने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये जज्बा उसके अंदर एक इत्मीनान की कैफियत भर देता है। इसको कहते हैं हया। जब किसी को नजर भर कर देखने की कोशिश करें, किसी तरफ जाने की कोशिश करें, किसी से हाथ मिलाने की कोशिश करें, किसी से तनाई में बात करने की कोशिश करें, किसी से नरमी के साथ और मीठे अंदाज में नाजायज तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, तो हया के कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हया कितनी जख्मी हो जाएगी। अंदर की हया जो एक जोहर है, एक कीमती चीज है, एक कीमती जज्बा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दिल में रखा है, उसकी हिफाजत करना है। अगर इसका लिहाज ना करेंगे तो वो हया कैसी मजरूह हो जाएगी, कैसी तार तार हो जाएगी, किस तरह जख्मी हो जाएगी इंसान की हया। तो फिर इंसान का जीना और मरना बराबर हो जाएगा, बल्कि जीते जी मुर्दों की तरह, जीते जी जानवर हैवानात की तरह की जिंदगी होगी। तो ये हया को बरकरार रखना है। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत का अंदाजा दिलाते हुए कहा है कि हर दिन का एक अखलाक होता है, और इस्लाम का अखलाक हया है। इस्लाम का एक कीमती चीज जो है, जो पैदा करना चाहता है इंसानियत के अंदर, उसके अंदर हया को परवान चढ़ाना चाहता है। शर्म, शर्मीलापन, बुराई से बचने का एक जज्बा, ये परवान चढ़ाता है इस्लाम। इस तरह नौजवानों की हिफाजत करना चाहता है, इस तरह अखलाक की हिफाजत करना चाहता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप गौर करेंगे तो किस तरह इन बातों से एहतियात करने से हिफाजत हो सकती है अखलाक की। लेकिन अगर इसकी परवाह ना करे कोई, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आगाह कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सह। और जो कोई अल्लाह के हदों की से तजावुज करेगा वो अपने ऊपर जुल्म करेगा। अगर ये लिमिटेशंस है तुम्हारे लिए, इन राहों से आगे बढ़ना नहीं है, इन बाउंड्रीज से आगे को क्रॉस करना नहीं है, अगर इन लिमिटेशंस को क्रॉस करेंगे तो तुम खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले होगे। दूसरे का कोई ना बिगाड़ोगे, अल्लाह का कुछ ना बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा खुद खराबा होगा, तुम्हारे अखलाक तबाह होंगे। और फिर आगे हालत यह होगी कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह।
जिल्लत खारी और पस्ती और बदहाली उन पर मुसल्लत हो गई और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। जैसा पिछली कौमों ने गुनाह किया और हक के खिलाफ गवाहियां दी तो जैसा वो बर्बाद हो गए उस तरह बर्बादी का मुंह देखना पड़ेगा। अगर ना समझेंगे जुल्म, अरे हमारी जिंदगी है, हमारा हक है हमारे जिस्म पर, हम कैसा भी इसको इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा जिस्म है। खुद को अपने आप के मालिक, असल मालिक को भुलाकर, अल्लाह ताला को भुलाकर, असल क्रिएटर को भुलाकर, किसने पैदा किया है कि क्या हम अपने आप से अपना जिस्म बनाए हैं, अपने आप से अपनी कुव्वतें और ताकतें पैदा किए हैं? अगर हमारी आंखों की रोशनी अगर छीन ले अल्लाह ताला, क्या हम ला सकते हैं? अगर हमारे कानों की अगर समाअत, सुनने की ताकत को छीन ले या निकाल ले, सल्ब कर ले, वापस ले ले, तो क्या पैदा कर सकते हैं? क्या कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर और हकीम ये ताकत हमें दिला सकता है? तो असल जो देने वाला है, असल जो क्रिएटर है, हमें जिस्म दिया तो अपने जिस्म पे हम तंदुरुस्त हैं, तवाना है, फख्र करे। रंग रूप दिया उस पर फख्र करे, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अरे दिया हुआ किसका है? शुक्र अदा करना है, झुककर दबकर जिंदगी गुजारना है, नरम होकर जिंदगी गुजारना, अकड़ कर नहीं। ये दिया हुआ अल्लाह का है, उसका एहसान मानना है, शुक्र अदा करना है, फख्र नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना है। तो ये सब छोड़कर जिसने ये कहा कि ये मेरा जिस्म है, मैं इसको कैसा भी इस्तेमाल करूंगा, ये मेरी लाइफ है, मैं कैसा भी गुजारूं। अरे लाइफ क्या आपके हाथ में है? बचा के देखो, 100 साल के होने के बाद मैं जीऊंगा बल्कि कोई चैलेंज कर सकता है? ना हमारी जिंदगी अपने से लाई हुई है, ना हमारा जिस्म अपने से हासिल करता है, ना हमारी जिस्मानी कुव्वतें और सलाहियतें अपनी आपकी हैं, बल्कि ये सब दी हुई अल्लाह की हैं। शायर ने कहा है, मिर्जा गालिब ने क्या खूब एहसास दिलाया है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ये सब कुछ हमारा दिया हुआ अल्लाह का। अगर हम इसको हर चीज को अपने कुर्बान कर दें अल्लाह की राह में तो हक अदा नहीं हो सकता। इस बात को हमें समझना है। तो भाइयों, अजीजों, नौजवानों, बहनों, ये सब अल्लाह की दी हुई चीजें, इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उस तरीके से इस्तेमाल ना करेंगे, अपनी जवानी की उस तरह हिफाजत ना करेंगे तो तबाही और बर्बादी का मुंह देखना पड़ेगा। ये तो रही आखिरत में हम जो नुकसानात आएंगे, जब अल्लाह की हिदायत की ऐसा लापरवाही करेंगे तो अल्लाह के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे? कल क्या उम्मीद रखेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, अल्लाह के सामने हमारा रिकमेंड करेंगे, अरे ये पूरे हम जैसा बताए वो सब फॉलो किए हुए हैं, इनको माफ करो अल्लाह। क्या हम उम्मीद कर सकेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे, सिफारिश करेंगे? क्या ये उम्मीद दिल में बाकी रह सकती है? और फिर क्या ये उम्मीद बाकी रह सकती है कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी करेगा, माफ करेगा? उसने अकल दी, जिस्म दिया, जिस्मानी कुव्वतें दी, सारी सलाहियतें दी, और उन्हीं को लेकर हम उसके खिलाफ काम करते रहे, उसकी मर्जी के खिलाफ चलते रहे तो अपनी दुनिया भी बर्बाद के लिए, फिर कल आखिरत में भी बर्बादी का मुंह देखना पड़ेगा। अजीज नौजवानों, ये तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के तहत जो नुकसानात का अंदेशा है वो मैंने आपके सामने रखा। अब दुनिया के एतबार से भी देखिए, जैसा सरसरी मैंने इशारा किया, पढ़ने वाले अगर किसी लड़के की तरफ कोई लड़की देखने में वक्त गुजारेगी या उसके ख्यालात में गुम होकर गुजारेगी या उस पर मोबाइल से बातें करते हुए वक्त गुजारेगी तो पढ़ने के लिए कहां से वक्त लाएंगे? कोई लड़का ऐसे ख्यालात में वक्त गुजारेगा तो पढ़ने के लिए वक्त कहां से लगा? सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी रात भी सुकून से नहीं गुजर सकती। तन्हाई में बस उन्हीं के ख्यालात हैं, उन्हीं की यादें हैं, दूसरे काम के लिए वक्त नहीं। ऐसा है जैसा दीवाने का हाल हो गया है कि तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे कि कुछ रख के कहीं भूल गया हूं। एक शायर इसी जज्बे को बता रहा है कि माशूका से दूरी पर कैसा सोचता है एक दीवाना, कि वो ऐसा कह रहा है, तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे कि कुछ रख के कहीं भूल गया हूं। काम तो कुछ चीज है, भूल गया, अपने आप को याद नहीं रहा। तो ऐसा दीवानों का हाल हो जाता। किसका हक क्या है, वालिदैन की खिदमत की क्या जिम्मेदारी है, उनके क्या हुकूक है हम पर, वो याद नहीं रहा। सुबह सुबह नाश्ता तैयार करके दे रहे हैं, टिफिन बन के दे रहे हैं, सब कपड़े धो के तैयार रख रहे हैं। माँ कितनी तकलीफें उठा रही, कुछ एहसास है? बाप कैसी मशक्कत करके हमारे लिए गुजर बसर का सामान कमा रहा है, वो कुछ एहसास है? ये कुछ भी नहीं, बस इश्क में पड़े हुए हैं, मोबाइल,
कितने पैसे क्यों नहीं जाते, रिचार्ज करेंगे फिर देखेंगे फिर बात करेंगे, फिर कितने पैसे क्यों नहीं जाते, जाएंगे फेल क्यों नहीं होते, डबल फीस क्यों नहीं भरना पड़ता, बस यही करते रहेंगे इश्कबाजियां, तो तबाही है, बर्बादी है। अपने टारगेट को कैसा अचीव कर सकते हैं ऐसे लोग जो ऐसे नाजायज इश्क और मोहब्बत में अपनी दिलचस्पी रखेंगे, तो दुनियावी लिहाज से भी वो बर्बाद हो जाएंगे अपना टारगेट। हालांकि अल्लाह बाज हमने देखे हैं ऐसे ज़हीन लोग, ऐसे इंटेलेक्चुअल के बच्चे, उनके बारे में सोचते हुए महसूस होता था कि ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा महसूस होता था। लेकिन बाद में जब देखे तो वो अपना SSLC भी कंप्लीट नहीं कर सका, या अपना इंटर पूरा पास नहीं कर सका, या कोई डिग्री नहीं ले सका। इतने ज़हीन थे, इतने ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन वो अपनी तालीम को पूरा नहीं कर सके। उनके मुकाबले में जो मीडियम क्लास के लोग थे, जो ऐसे एक्सपर्ट एकदम काबिल तो नहीं थे लेकिन मेहनती थे, जिन्होंने अपने अखलाक की हिफाजत की, अपने वक्त की हिफाजत की, वक्त की कदर की, वो आगे निकल गए और एकदम ऐसे ब्रिलियंट दिखने वाले बच्चे फेल्यूर रहे। ये हमने देखा है अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को, जो बहुत काबिल थे वो फेल हो गए और जो सीधे साधे थे वो बहुत आगे निकल गए। तो ऐसा है, अगर इस दौर में अखलाक की हिफाजत ना करेंगे, अपने ख्यालात की हिफाजत ना करेंगे, तो अपना टारगेट कभी अचीव नहीं कर सकते। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी सेहतों को बर्बाद कर लेंगे। नौजवान बेहतर जानते हैं कि बदअखलाकी में, बुरी सोच में पड़ने से सेहत के क्या क्या नुकसानात होते हैं। मैं उनकी तफसीलात नहीं रखूंगा, वो सब बेहतर जान सकते हैं कि जिस्मानी बहुत सारी कमजोरियों के साथ साथ नजर की कमजोरी, दिमाग की कमजोरी, चक्कर आना शुरू होती है, बैठ नहीं सकते देर तक, कुव्वत कमजोरी, हिम्मत पस्त हो जाती है, और बहादुरी, जवामर्दी, ये जज्बे बाकी नहीं रहते। और लड़कियां भी वैसे ही बुजदिल, कभी तो चाहेंगे यार खुदकशी करना दिल चाह रहा है, इस तरह बुजदिलाना ख्यालात, इस तरह मायूसाना ख्यालात, इस तरह की थोड़ी पैदा हो जाती है। तो दरअसल जो लोग इस राह में ठोकर खाते, डगमगा जाते हैं, अपने कदम को सही जमा कर नहीं रख सकते, जो फिसल जाते हैं, वो बड़े नुकसानात उठाते हैं। उनकी सेहत भी बर्बाद होती है, उनके ख्यालात बर्बाद होते हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद होता है, उनकी दुनिया बर्बाद होती है। ना माँ बाप के सही शुक्रगुजार हो सकते, ना माँ बाप के लिए आगे कोई खुशी का सबब बन सकते। अगर नौजवानी में ऐसे हरकतें करेंगे तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगा? क्या माँ सोचेगी कि मेरी बेटी बहुत नाम कमा रही है? क्या माँ ये सोचेगी कि मेरा बेटा बहुत तरक्की कर रहा है? अगर ऐसे इश्क आशिकी के चक्कर में पड़ेंगे तो सब कुड़ते रहेंगे, तकलीफ महसूस करते हैं, वो जाहिर नहीं कर सकते। आप अगर गौर से उनकी तकलीफ का अंदाजा करेंगे तो उनकी रातों की नींद कहाँ हो गई। गौर कीजिए, उनको वो कैसे कैसे बीमारी में मुब्तला हो गए, उन्हें शुगर आ गई, उन्हें बीपी आ गया, उन्हें नींद नहीं आती। ये सब किस लिए है? अगर नौजवान औलाद उनके लिए आंखों की ठंडक का जरिया बनती तो फिर क्या वो इस तरह परेशान हो सकते थे? गौर कीजिए। तो मेरी अजीज बहनों और भाइयों, इस राह में बड़े नुकसान हैं, बड़ी तबाहियां हैं, दुनिया की भी और आखिरत की भी। मैंने कोशिश किया कि इन बातों को आपके सामने तफसील से रखूं, और फिर आगे का उन्वान है इसका, वो बिल्कुल थोड़ी बात रखकर मैं क्लोज करूंगा। वो है बैन मज़ाहिब शादियों की शरई हैसियत। अभी दरस कुरान में बात आई, मैं तफसील से उसके बारे में कहना नहीं चाहूंगा, मुख्तसर इशारतन कहूंगा कि भाई एक थिंकिंग है, थॉट है, बिलीफ है, एक बिलीफ पे चलने वाला, उसी बिलीफ के मुताबिक उसका शादी हुई तो घर में सुकून रहता है। अगर उसके खिलाफ में हुई तो पूरा घर तबाह होता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, सब परेशानी ही परेशानी का आलम होता है, जिंदगी परेशानी में गुजर जाती है, जिंदगी नाकाम होती है। नौजवानों, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, अपने ईमान को भी गंवा बैठोगे, दुनिया भी गंवा लोगे, आखिरत भी गंवा लोगे। शरई हैसियत में साफ इशारा किया गया है कुरान मजीद में। अभी तज़कीर बिल कुरान में आयत पढ़ी गई, मैं तर्जुमा सुनाता हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो।
اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یعنی ایمان کا راستہ وہ ہے جو انسان کو کامیابی دلاتا ہے. جہنم سے بچ سکتے ہیں ایمان اور اچھے اخلاق کی زندگی بسر کرنے پر. اگر ایمان کو چھوڑیں گے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے. اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. جنت کا راستہ چھوڑ کر کیا کوئی جہنم کے راستے کی طرف جا سکتے ہیں؟ کوئی بہوش حواس ایسا کام نہیں کر سکتے. تو اپنے اخلاق کی حفاظت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر آپ غلط قدم اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے، ورنہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے. اور ایک بات کہ اجازت جہاں ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہے، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو. یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. مرد کو اجازت ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی بڑا احتیاط ہے، بڑا احتیاط ملحوظ رکھنا ہے. خواہ ایسا ہے اجازت، بلکہ اس کا مس یوز کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں سوچنا ہے. گھر کے ماحول میں کیسی کھلبلی مچ جائے گی، کیسی افراتفری مچ جائے گی، یہ سب سوچ سمجھ کر اور اپنے ایمان کی حفاظت کر کے شریعت کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرنا، ورنہ دنیا میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی. اب تک جو باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی، شاید یہ ہر ایک نوجوان کے دل کی مانگ ہے، پکار ہے، چاہے کوئی ہو. کیا کوئی اخلاقی ترقی سے غفلت برت سکتا ہے؟ ہر ایک انسان چاہے گا. اللہ کا ہر بندہ اور بندی یہ چاہیں گے کہ ہم اچھے اخلاق ڈیولپ کریں، اپنے اندر اچھے ماحول کو ڈیولپ کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے خیالات کی حفاظت کریں اور غلط کام نہ کریں، غلطیوں سے بچیں. اور جب ماں باپ شادی کا وقت قریب آئے، ایک سٹیج آ جاتا ہے، ایک عمر کو پہنچتے ہیں یا کوئی تعلیم کمپلیٹ کیے یا وہ محسوس کرے گھر میں کہ ہماری لڑکی کی شادی اب کرنا ہے یا ہمارے لڑکے کی شادی اب کرنا ہے، اس وقت رشتے کی کوشش کریں گے. تو اس وقت تک ہم سب کے لیے، ہم سب نوجوان بچے بچیوں کے لیے ضروری ہے، چاہے اللہ کے وہ کوئی بندے ہو، سب کے لیے اسی میں فائدہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے اور برائی کے راستوں پر نہ پڑے. یہ برائی کے راستے دنیا کے اندر بھی بہت بہت نقصان دینے والے ہیں. یہ سب نوجوان کیونکہ ہر ایک مان سکتے ہیں. ذرا سوچ کے دیکھیے، آپ کا دل گواہی دے گا، پھر اللہ کے پاس بھی کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سوچ سمجھ کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو جنتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.